quotation from my side. Spend like a beggar and invest like a king. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप कभी भी ग्रोथ नहीं पाओगे अपनी जिंदगी में, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे. Definitely you're going to face challenges in your life. Whatever you plan might not come true. Anything might go wrong in your life. But always remember, magic happens when you don't give up, even though you want to. Because somehow the universe falls in love with a stubborn heart. People don't become successful in their life because they don't have a mentor. कोई है ही नहीं उनको गाइड करने के लिए. मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं था. तो मैंने बोला I will change the lives of people. I started supporting them. Hard work beats talent when talent does not work hard. And that is precisely what I want each one of you to do. If you're watching this video today and if you are at the lowest point in your life, if you feel that you're not growing in your life, if you feel that nothing is going as per plans, repeat these lines after me. Yes, I shall face challenges, but I'm strong enough to overcome them all and win. Everybody knows this one. पैसे कभी भी पेड़ पे नहीं लगते हैं. But I decided कि पेड़ तो हम लगाएंगे. एक ऐसा पेड़ जिससे हम लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे. एक ऐसा पेड़ जिससे हम बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बनाएंगे. And I'm so very proud that today, because of me and my team, जितने हम कोचिंग असाइनमेंट्स करते हैं, जितने लोगों की लाइफ में हम परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, वो सच में एक बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल चीज है. And let me guarantee कि इस पेड़ से इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज बनेगी ना कि लोग गिनते गिनते थक जाएंगे, सक्सेस स्टोरीज नहीं रुकेंगी. That is my mission. Hello. All good? Okay. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for each one of you. First of all, I would like to thank the authorities of Uttarakhand University, sir, and each and every one of you. Because you know what? आप एक बार सोच के देखो, आपके इस यूनिवर्सिटी में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 8,000, 9,000, 10,000, right? We have 10,000 students here. Yes or no? Yes. Ladies and gentlemen, this is not the kind of energy at which I operate. Our energy has to be top notch. We have 10,000 students here. Yes? Yes. Louder, yes? Yes. And we have about 650 or 700 people over here, जो आपकी यूनिवर्सिटी के हैं. What that means is that only 7% people have taken the initiative to be here. Don't you feel that you deserve a round of applause for that? Yes? आप लोग के पास आपके डायरी पेन्स हैं सबके पास? Because I make you write a lot of stuff. जो मेरे कुछ mentees हैं जो यहाँ पे आए थे already know about it. I want you to write a lot of stuff because what we have done is, I tell you something. जो हमारे events होते हैं वो 13-14 घंटे के होते हैं. So वो सारी चीजें कैप्सूल फॉर्म में आपको 2 घंटे के अंदर देना वो मेरी जिम्मेदारी है. And one thing that I want from all of you is you note down everything, you implement everything. You implement all those things for you. You make your university proud and you make your parents proud. Are we game for that? Yes. Yes. People, I want the same intensity till the end. Are we ready for it? Yes. Okay. Awesome. Can we go to the next slide? एक ये कमिटमेंट है जो मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी मेरे इवेंट में, किसी भी मेरे सेशन में, कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. आई हैव अ क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द टर्म्स एंटरप्रेन्योरशिप? थोड़ा बहुत आइडिया है क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? यस, आपके पास फोन है. एनीथिंग, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? आप ही बता दो. टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ओके. एंड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके वेल्थ जनरेट करना. ओके. एंड ओके, अगर आप एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक चेंज लेकर आते हैं, मेक सेंस. और जरूरी नहीं है कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर किसी नए आइडिया में काम करो. मे बी कोई एक्जिस्टिंग आइडिया है, आप उसको इंप्रूव अपॉन करो. दैट वुड आल्सो वर्क. बट गुड पॉइंट्स. एंड एक पॉजिटिव चेंज को मोनेटाइज करना. और ओके, गुड. अभी मैं सर से बात कर रहा था एंड मैंने सर को बोला, सर ने बोला हमने एक टावर से शुरू करा था. अभी तो टावर्स और बहुत सारे टावर्स बनाते चले गए. ऐसा ही कुछ जितेंद्र सर ने करा है. एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. धन्यवाद. ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स? किस-किसका ये सपना है कि यार अपना खुद का कुछ करना है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट? ओके, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी. व्हाई? क्यों करना है?
you can reach many people doing anything else also. Why? Okay, solve a bigger problem. Or yeah, you're already doing that. Okay, yes. आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा आजादी है? ऐसा कैसे लगता है आपको? ऐसा नहीं होता यार। देखो मैं आपको बताता हूँ एक सच्चाई, ठीक है? आपको लगता होगा कि एज एन एंटरप्रेन्योर हम अपने बॉस होते हैं, हम खुद सब कुछ करते हैं हमारा। ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस समय मेरी टीम में 40 लोग हैं तो मैं ना चाह कर भी ये नहीं कर सकता कि आज मेरा मन नहीं है काम करने का। आई विल हैव टू वर्क, यू अंडरस्टैंड? अगर एक आप मान के चलते किसी टीम में हो, आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप सोच सकते हो आज मेरा मन नहीं है तो आज मैं काम नहीं करूंगा, बट यू कैन डू दैट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो। एंड बिलीव मी, अगर आप मेरी बात करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय टीम मेंबर्स, माय मेंटीज, माय पेरेंट्स, पीपल हूम आई हैव टोल्ड अबाउट माय वर्क। उसके बाद जाके अगर कोई बचता है तो वो मैं खुद। तो किसी को अगर ये लगता है कि हमको बहुत ज्यादा टाइम फ्रीडम मिलती है, ऐसा तो नहीं होने वाला। किस को ये लगता है बहुत ज्यादा टाइम फ्रीडम होती है, बहुत ज्यादा पैसा होता है, यू फील दैट वे? लेट मी टेल यू समथिंग कि ऐसा नहीं होता। बट देन व्हाई इज इट वर्थ इट? ऐसा क्यों? एनी अदर रीजंस क्यों आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज़ हमें लीडर्स की जरूरत है। ओके, वी नीड मोर लीडर्स, मेक सेंस। और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो रियल में लीडर्स होते हैं बिकॉज़ वो खुद से क्रिएट करते हैं। ओके, एंटरप्रेन्योर्स आर लीडर्स, दे क्रिएट थिंग्स, ऑलराइट। एंड सर सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए we get more self satisfaction. Okay, and okay, good. हमें और लोगों को रिच बनाना है अपने साथ साथ, और because they don't want to work under someone, हम लोगों ने कुछ बुक्स रखी हैं। You have a very loud voice, let's have a book for her please. Okay, so हमें और लोगों को anything else? We want to create more opportunities for others. हाँ जी, entrepreneurs can change the world. This is something that I truly believe in. एक चीज है आपका ना तनिष्क, एक चीज अगर इन्होंने देखा होगा, आपको क्या तब लगता है ना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट विल मेक अ चेंज एंड देन थिंग्स वुड चेंज फॉर अस। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? In a country like ours where we have 1.4 billion people, believe me, even if they want to implement something, by the time it comes to us, वो इतना percolate होके आता है कि हमारे पास आने तक बचता ही नहीं उसमें कुछ। So if you really want to bring a change, of course, हमको खुद से करना है। Entrepreneurs can bring a change. That is something that I agree with. And what else? People at the back, yeah. Economy में contribute करने के लिए, okay. And आप कहाँ से आए हो? आपको भी तो मैं जानता हूँ। Where have you come from? He has come from जयपुर। आप में से कितने लोग हैं जो जयपुर और दूर दराज जगहों से आए? एक बार raise your hands please. Very nice, sir. This is so amazing. Big round of applause. This shows your commitment. हाँ जी, आप बोलो। Okay, they want to serve others. They don't want to give up. Alright. कुछ मैं आपको ना इंटरेस्टिंग सा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। एक स्लाइड है यहाँ पे। एक रोहन 8.5 साल पहले की एक फोटो है। आपको एक बहुत सरप्राइजिंग चीज मैं दिखाऊंगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सर और अभिषेक जी की बात शायद सबसे पहले, सर मुझे नहीं पता आप कब थे, हम यहाँ पे 8.5 साल पहले आए थे आपकी यूनिवर्सिटी में। एंड उस समय पे ऑफ कोर्स ये वाला ऑडिटोरियम भी नहीं था। हम लोग उस समय डिस्काउंट कार्ड्स बनाते थे देहरादून में। और मुझे याद है हम लोग यहाँ पे परमिशन लेने आए थे। वो एक लेटर होगा हमारे पास, पिछला स्लाइड जहाँ पे की लेटर था हमारा। गो बैक थोड़ा जल्दी, पीछे हाँ, और पीछे, इसके पिछला, लास्ट सेकंड, इससे पिछला। पीपल कैन यू सी द, इससे लास्ट वाला, हाँ, कैन यू सी द डेट हमारे इवेंट का? नेक्स्ट स्लाइड। कैन यू सी द डेट ऑफ द इवेंट इफ इट इज विजिबल? इट इज 1 and 2 March 2014। 2014 में हम लोग सेम यूनिवर्सिटी में आए थे परमिशन लेने के लिए कि हमें कुछ डिस्काउंट कार्ड बनाए। उस समय हमारा इवेंट कर रहे थे, उस इवेंट का हम यहाँ पे परमिशन लेने के लिए आए थे। आपको क्या लगता है हमें परमिशन मिला होगा नहीं मिला होगा? हाँ नहीं मिला होगा। नहीं यार, हमको अच्छे से बकायदा परमिशन मिला था, ऐसी कोई बात नहीं। आप अगली स्लाइड करिए। वी गॉट द परमिशन एंड आई टेल यू, हमारे पास उस इवेंट में भी सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स थे वो आप ही की यूनिवर्सिटी के थे। व्हाट दिस मींस इज दैट इट इज नॉट जस्ट नाउ बट सिंस द पास्ट सो मेनी इयर्स दैट योर यूनिवर्सिटी हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग, द स्टूडेंट्स हैव बीन टेकिंग एक्शंस। बिकॉज़ बिलीव मी, एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी टू बिकम आईटी सक्सेसफुल? क्या लगता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट? हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, ओके, एंड mindset, okay, and clarity of what I have to do, okay, and empathy, okay, caring for other people, thinking about other people, उनके shoes में खुद को रख के देखना उनके जैसा, और your idea should be the best. ऐसा नहीं होता, हाँ, but there are no wrong answers over here, right? Okay, हाँ जी,
open to feedback, okay, and I agree. ये मेरे को पता है, मेरे से पहले से सीखते हैं, इसलिए इंटेंट वाली चीज यहाँ पे आती है. How many of you agree that intent is very important? Intent का क्या मतलब होता है? Why are you doing it? जो भी हम चीज कर रहे हैं, for example अगर हम अभी सेशन की बात करें, why is it that I want to do this? Because I want to give back, because I want to contribute, because we want to create more success stories. So do you agree intent plays an important role? Yes. People, do you agree intent plays an important role? Yes. Good. हम इसी एनर्जी पे वर्क करेंगे, ठीक है? तो एक हो गया इंटेंट. अगला क्या होता है आफ्टर इंटेंट? What do you think? Risk maybe and skill set maybe yes maybe not. एक टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल करके अकेडमी है, कम्युनिटी है. यहाँ पे हैरी सर हमारे आए हुए हैं एंड सर ने बहुत कंट्रीब्यूट करा है टोस्टमास्टर्स में, माय जर्नी एज वेल. टोस्टमास्टर्स में ना एक स्पीच कॉन्टेस्ट होता है. तो पहले क्लब लेवल होता है, फिर एक एरिया लेवल होता है, फिर एक डिवीजन लेवल होता है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है. तो मैं एरिया क्लब में तो जीत जाता था, डिवीजन में भी फिर गए और मैंने अराउंड 3-4 बार पार्टिसिपेट करा होगा डिवीजन लेवल पे. नाउ आई टीच पीपल अपॉन कम्युनिकेशन. तो आपको क्या लगता है अगर मैंने 4 बार पार्टिसिपेट करा होगा एट द डिवीजन लेवल, हाउ मेनी टाइम्स वुड हैव आई वन? व्हाट डू यू थिंक? This is so heartening to hear every time, but let me tell you something. I did not even win it once. एक बार भी नहीं. उसका रीजन है. I tell you what the reason is. Irrespective of how good I am, जब भी मैं वो कॉन्टेस्ट में जाता था ना, जाने से पहले मैं जो बाकी के लोग कम्पीट करते थे ना, मैं उनका वीडियो देखता था. यार ये तो ह्यूमरस बहुत अच्छी स्पीच देता है, ये तो ज्यादा अच्छा स्पीकर है, ये बहुत ज्यादा अच्छा कम्युनिकेटर है. एंड यू नो व्हाट, इवन बिफोर आई वेंट टू दैट पर्टिकुलर वेन्यू, आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट दैट बैटल. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस? बिकॉज मैं अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करने की जगह पे ये फोकस कर रहा था कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो क्या करने वाला है. नाउ व्हाई इज इट दैट with all the humbleness I would like to say people don't know that but people know what we do. ऐसा क्यों है फिर? तो स्किल सेट तो शायद नहीं, ठीक है. फिर persistence okay and right path okay and taking initiatives and one very important thing which I want all of you to write is first and foremost, ladies and gentlemen, it is showing up. Believe me, you have shown up today. So if you have shown up, there is a probability that you might gain something or the other. Yes? Yes? अगर आप शो अप ही नहीं करते तब तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारे पास कभी भी नहीं आती. डू यू अग्री? तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा इंटेंट. आई हैव टू हैव एन इंटेंट wherein I want to serve. The second thing is that I really want to show up every single day, whether I feel like it, whether I don't feel like it, whether I feel like giving my 100% or I don't feel like giving my 100%, irrespective of whatever I'm going through in my life, I have to show up. Everybody agrees to this? Yes? Okay, good. एक चीज इसमें और आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है. पता है क्या? आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ नंबर्स. आप कैसे 1 करोड़ पर ईयर तक स्केल कर सकते हो, आप कैसे 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक भी स्केलिंग कर सकते हो. लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वो नंबर्स देने के बाद, पूरा क्लियर पाथ मिलने के बाद भी बहुत सारे लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते. आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम? एनवायरनमेंट गुड एंड belief system. How many of you agree that belief system plays an important role? Yes? Yes. Okay, good. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है. आपको क्या लगता है जो आपके खुद के इमोशंस हैं, आर दे योर ओन इमोशंस? आप बोलोगे सर ये क्या राहुल है, क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहा हूँ, मेरे इमोशंस है तो मेरे ही होने चाहिए. डू यू फील जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपका माइंडसेट है, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, डू यू फील दैट योर ओन इमोशंस आर योर ओन इमोशंस? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? रेज योर हैंड. और अगर जो हाथ नहीं उठा रहे मैं ये भी पूछूंगा क्यों, तो आपको बताना पड़ेगा. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दे आर नॉट योर ओन इमोशंस? सो मेनी पीपल. व्हाई डू यू से सो? ऐसा क्यों बोलते हो आप? या ओके, हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, ये तो चलो फिर भी वो हो गया कि मैं ऐसा सोचता हूं, लेकिन इसमें ये बात नहीं है कि इमोशंस आपके खुद के हैं या खुद के नहीं है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Why is it? I tell you, your emotions are even not your own emotions. They have been induced inside. Now tell me why and how. Because of your environment, good and yes. I love the way you have raised your hand. I love people like that. क्या नाम है आपका? Good यार, बताइए. Impact of people like you. Okay, so it is a good impact or a bad impact? I hope so. Okay. और ये तो चलो आप मेरे को तो पहली बार सुन रहे हो. आप अभी कितने इयर्स के हो? व्हाट्स योर एज? सर 19. यू आर 19 इयर्स ओल्ड, राइट? हम लोग यहाँ पे कुछ लोग हैं 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 अलग अलग एज ग्रुप्स हैं. आपने कभी ये सोचा बचपन से लेकर अभी तक ऐसा, कुछ लोगों को सुन के बुरा भी लगेगा लेकिन एक चीज सोचो, बचपन से लेकर अभी तक ऐसा आपको कितनी बार बोला गया है दैट आई बिलीव इन यू? हाउ मेनी टाइम्स हैज इट हैपेंड दैट दिस हैज बीन सेड टू यू दैट आई बिलीव इन यू? व्हाट डू यू थिंक? कितनी बार हुआ ऐसा? Many few times. आपको कितनी बार याद है, कितनी बार हुआ? How many of you remember being told this maybe by your parents, maybe by your teachers,
मे बी बाय आवर लव्ड वंस और बाय एनीबॉडी, आई बिलीव इन यू। किसको याद है कि मुझे कम से कम 10 बार बोला गया है? मेरी बॉटल में तो लिखा है, एक बार दिखा वाली फोटो जरा। Okay, so this is water bottle that I gave to all my participants in one of our events. और जो इसमें सबसे important चीज़ है जो मैंने लिखी है वो यही है, I believe in you. Because ladies and gentlemen, believe me, when you have that one person in your life who says I believe in you, do you agree आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा easy हो जाती है? और अगर हम ये बोल रहे हैं that 99% people in this hall say कि हमको कभी ये बोला ही नहीं गया है I believe in you, तो हमको हमारे ऊपर भरोसा कैसे होगा? Am I right? सोच के देखो आप। ऐसा ना, मैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज में गया हूं ना, इंक्लूडिंग योर यूनिवर्सिटी, हर कोई ये बोलता है यार हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे तो ना आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो तो ना इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आई वेंट टू IIMs एंड वो बोलते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे तो ना आपकी बात नहीं सुनेंगे। एंड आई वाज लाइक तो अच्छे बच्चे पढ़ते क्या है, क्या वो चांद पे पढ़ाई करना चाहते हैं? ऐसा मतलब क्या होता है, कहाँ पे मिलेंगे हमें वो अच्छे बच्चे? आपने कभी ऐसा सोचा? लेकिन ऐसा क्यों है? Why is it that even our parents, even our university people, they say यार तेरे बस का नहीं, You had a dream, right? आपने सोचा मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला हूँ, आप भाग के गए, आपने अपनी मम्मी को जाके बोला मॉम अब तो मतलब हमारे घर में ताबड़तोड़ पैसे होने वाले हैं, पैसे होने वाले हैं, ये वाली गाड़ी हटाओ दूसरी गाड़ी आने वाली है, बड़ा घर आने वाला है, सब कुछ। अगर आपने ये जाके अपने घर पे अपनी मम्मी को बोला तो आपको पहला जवाब क्या मिलता? तू पागल हो गया, ऐसा नहीं होने वाला, ये नहीं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? पास्ट एक्टिविटीज, पास्ट एनवायरनमेंट एंड मेरे खुद मम्मी पापा यहाँ पे बैठे हुए उनके अंदर भी तो यही चीज डाली है ना। आप सोचो, यू हैव द इंटरनेट टुडे, यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टुडे। व्हेन यू टॉक अबाउट योर पेरेंट्स, डू यू थिंक उस समय पे इतनी अपॉर्चुनिटीज थी? डू यू थिंक उस समय पे उनके पास इतना ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता थी? इट वाज नॉट पॉसिबल, राइट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दे हैड, उन्होंने वही इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करी है। उनको ये लगता था कि यार उन्होंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया अपने टाइम पे, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा फिजिकल हार्ड वर्क करना पड़ता था, उसके बाद जाके आपके पास वो पैसा आता था। डू यू एग्री? यस। नाउ हैज द टाइम चेंज? यस और नो? Now has the time changed? Yes or no? Good. So now when you see that the time has changed, still somebody says कि यार तुम्हारे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता। मैं तो बहुत ही पोलाइट वर्ड्स यूज कर रहा हूँ आप लोग के सामने, है ना? आपको पता है आप लोग को और क्या क्या बोला जाता होगा? आप यहाँ पे हंस भी रहे हो, सो मुझे आपको पता होगा क्या बोला जाता है। सो वेदर इट इज माई फ्रेंड, आपका क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? मेघा। मेघा बहुत ज्यादा मोटिवेट होती है, मेघा जाके अपनी फ्रेंड को बोलती है मैं ऐसा करने वाली हूँ, बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में बदलाव होने वाला है। आपकी फ्रेंड का क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जीशान। जीशान बोलता है तो बैठ यार मूवी देख के आते हैं, नई मूवी आने वाली है, शास्त्र वगैरह देख के जाते हैं हॉल में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डज दैट हैपन? यस और नो? सो डू यू एग्री दैट मेनी अ टाइम्स जो हमारे खुद के इमोशंस हैं, दे आर नॉट इवन आवर ओन इमोशंस, जो हमको बचपन से बोला गया है, जो थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में बचपन से डाला गया है, जो इंफॉर्मेशन दिया है, जो भी चीज आपके माइंड में भरी है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट वेदर वी डू समथिंग और वी डोंट डू समथिंग इन आवर लाइफ। डू यू एग्री? यस। पीपल लाउडर। यस? Yes. ओके, आपके पास सबके पास डायरी पेन है। आई वांट यू टू डू एन एक्टिविटी राइट नाउ। प्लीज राइट 10 स्ट्रेंथ्स ऑफ योर्स, जो आपको लगता है कि आपकी 10 क्षमता है, सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ है। प्लीज राइट दैट ऑल ऑफ यू। यस प्रिटी, यू आल्सो प्लीज राइट 10 strengths of yours. And I want everybody to participate, okay? Only then this would make sense. I want you to write down 10 strengths. जो आपको लगता है ये 10 मेरी सबसे ज्यादा strengths है। और अगर आपको लगता है कि अच्छे से communicate करना, लोगों को समझना, interaction, whatever you feel, write that down. 10 strengths. All of you. पिछले क्वेश्चन के बाद ही सुनने के बाद ही पढ़ा है, जेन्युइनली ऐसा ही है। नाउ लेट मी आस्क यू दिस, मैंने आपको एक बात बोली थी ना, आई कैन गिव यू द नंबर्स, यू कैन मेक दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, यू कैन गेट दीस मेनी फिगर्स इन योर लाइफ, यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू गेट ऑल दोस रिजल्ट्स इन योर लाइफ, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज जब तक कि आपको वो बिलीफ नहीं आएगा कि ये आप नहीं कर सकते हो, तब तक वो रिजल्ट्स नहीं होंगे। जब तक आपके मन में ये चलता रहेगा ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस है। डू यू एग्री दैट कोई भी आपको डेटा मिल जाए, कोई भी आपको स्ट्रेटजी मिल जाए, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, मेरे लिए वो इंप्लीमेंट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, because the belief system there is lacking. How many of you agree to that? Raise your hand. Okay, now how do we change this? आप इसको बदल कैसे सकते हो? क्या लगता है? पहली चीज तो हो गई developing self love. That is something that is very important. I tell you something. जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था ना, पापा यहाँ पे बैठे हुए, तो मैंने ऐसे शीशा लेके पढ़ाई करता। तो जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद ऐसे शीशे में अपना चेहरा देखा, फिर एक चैप्टर पढ़ा, फिर शीशे में से, तो एक बार पापा ने मेरे को बोला थोड़ा पानी वानी लेकर आ मेरे लिए। मैं गया पानी लेने के लिए, और वो बैठने जा रहे होंगे बेचारे सोफे पे बैठे हुए, नीचे सोफा था, पापा के बैठने से पहले सोफे के ऊपर हमारा शीशा बैठा हुआ था। तो पापा ने वो उठाया, पापा ने बोला इसकी क्या जरूरत है? रसी पापा, जब आप अच्छी चीजें देखते हो ना पढ़ाई करते हुए, तो आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। ओके, एक बात बताइए, ऑनेस्ट आंसर, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 would give yourself 9 or 10 when it comes to self love?
others, ऐसा क्यों है कि जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं हम ये सोचते हैं कि यार मेरे अंदर ये बहुत सारी चीजें हैं, what is it that prevents us from believing in us? ऐसा क्यों होता है? लोग क्या कहेंगे? ओके, और we have, नहीं वो तो ठीक है, अगर आपके पास बिगर एक्सपेक्टेशंस होंगी तब तो आपका सेल्फ लव ज्यादा होना चाहिए ना, कम थोड़ी होना चाहिए। आप खुद को वर्दी नहीं समझते वो एक अलग चीज हो जाती है उस वजह से। यस, कंपैरिजन, हाउ मेनी ऑफ यू, ये तो पूछना भी बेकार है कि कौन कौन कंपेयर करते हैं। ऑल ऑफ अस डू, राइट? यस और नो? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी क्लास में कोई एक स्टूडेंट होगा, ये एग्जांपल दे रहा हूं, हु इज लाइक अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, और आप लोग उसको देखते होंगे, आपको लगता होगा यार काश मैं भी इतना अच्छा बोल पाता। ऐसा होता है? यस, कम ऑन, रेज योर हैंड इफ दैट हैपेंस, राइट? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नाउ सेज यस, ऐसा होता है। तो पहला हो गया कंपैरिजन। दूसरा, आई हैव टोल्ड, अच्छा एक चीज हम और बात कर रहे थे, आपकी यूनिवर्सिटी वालों ने या आपके पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बोला कि यार आप ऐसा कर सकते हो, आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों है? एक रीजन मैंने आपको बता दिया, उनके टाइम पे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और डू यू थिंक कि वो आपका अच्छा नहीं चाहते? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, राइट? आपके लिए आपके कॉलेज, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, उनसे अच्छा कोई नहीं चाह सकता पूरी दुनिया में। तो फिर ऐसा क्यों? उनको शायद हमसे बहुत ज्यादा प्यार है, तो उनको ऐसा लगता है यार अगर इसका कुछ बुरा हो गया तो फिर, ये एक रीजन हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो वाली बात नहीं है यहाँ पे, अभी उनका पार्ट खत्म हो गया, दे कांट वाला, अब आपके ऊपर आता है कि आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं? हम या पेरेंट्स? ओके, और हम उनको रिजल्ट, श्योरिटी तो कभी भी नहीं आई। आई टेल यू रीजन, आज तक अगर आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 19 इयर्स के हो, आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ सब्सटैंशियल करा नहीं है जो वो देख के बोले कि हाँ यार ये काम कर सकता है। अग्री? उन्होंने भी तो आपको देखा है ना, आपको उन्होंने देखा पढ़ाई करते हो, आपने कमिटमेंट करा है मैं पढ़ाई करूंगा, आप छोड़ देते हो। उन्होंने देखा है कि आप कोई नया एक्शन लेने वाले हो, आप शुरुआत करते हो, आप उसको छोड़ देते हो। डज दैट हैपन? सो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नाउ हाउ डू यू मेक देम बिलीव टू बिलीव इन यू? व्हाट डू यू थिंक? एक काम और करते हैं उससे पहले, ठीक है? एक चीज मेरे को करानी है एक्टिविटी। आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज राइज, प्लीज स्टैंड अप एवरीवन, एंड कैन आई हैव अ वॉलंटियर ऑन द स्टेज प्लीज? एनीवन? अनीश? एवरीवन, आपको उठ भी इसने आराम से ले यार, वो ऊपर वाले स्टूडेंट, अरे यार गेट अप एवरीवन, कम ऑन। ओके, नाउ आई वांट यू टू डू व्हाट आई वांट यू टू शो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लर्निंग में लेकर आ सकते हैं। बिलीव मी, इन द नेक्स्ट 1.5 years you will be able to do a lot better than what you are doing today. With a lot of modesty, I would like to share with you something. आज से कुछ साल पहले जब हम ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाते थे ना अपना बिजनेस लोगों को समझाने के लिए, हम मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत के बावजूद हम पैसे नहीं कमा पा रहे थे, नाम नहीं कमा पा रहे थे, रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था। क्या लगता है आपको ऐसा क्यों था? I just showed you, 8.5 साल पहले we came to this university, same. हम लोग एफर्ट तभी भी डालते थे लेकिन पैसे नहीं मिलते थे। क्या लगता है आपको ऐसा क्यों है? स्मार्ट वर्क, ओके, एंड ये बात भी सही है, आपसे पहले से लोग एग्जिस्ट करते होंगे मार्केट में, और we had no idea how to scale it. एक चीज और है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उस समय कि हमको क्या यूनिवर्सिटी से परमिशन मिली थी या नहीं मिली थी। अगर हमको वो परमिशन नहीं भी मिली होती ना यूनिवर्सिटी से, इट इज नॉट देयर फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट। मेरे को लोग नहीं जानते थे यार, मैंने अपना ब्रांड प्रेजेंस नहीं बनाया था, मेरा बिजनेस नहीं था। अगर आज की डेट में आप लोग बिजनेस करते हो, यू आर नॉट मेकिंग मनी, यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, डोंट फील एंग्री व्हेन समबडी सेज नो टू यू। The only thing is people don't know you enough. It's as simple as that. अगर आपको लोग जानते होते आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, अगर अभी नहीं है, हमको लोग नहीं जानते, हमने स्किल डेवलप नहीं करा है, that's it. ठीक है, ये चीज हो गया। तो why is it that we were working very hard yet we were unable to get results? What do you think? We were not putting efforts in the right direction, okay, and maybe the strategy. Trust building takes time, good, and reach नहीं था, लोग नहीं जानते थे, okay, and एक बार यार आप सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जोरदार तालियां। I'm loving the answers that we are getting from you. Come on, you deserve a bigger round of applause. I know आप लोग सुबह से क्लासेस करके आए हैं, good, and reach नहीं था, लोग नहीं जानते थे, longevity नहीं था, trust factor नहीं था, और कम्युनिकेशन तो था मैडम, लेकिन कम्युनिकेशन अगर मैं उन्हीं 10 लोगों के सामने रोज करूंगा तो मैं कितना भी अच्छा कम्युनिकेटर क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको समझ में एग्जांपल देता हूं, मैं देहरादून में था, यहाँ पे देहरादून टोस्ट मास्टर्स क्लब है, मैं वहां जाता था एवरी वीक, आई यूज्ड टू विन द बेस्ट स्पीकर कॉन्टेस्ट। अगर आप उन्हीं 15 लोगों में कम्पीट कर रहे हो, दिस नो पॉइंट।
अगर हमको सच में आगे जाना है, बड़ा बनना है, आपने देखा भी होगा मेरे इंट्रो वीडियो में मैंने 50 डेज में 50 स्पीचेस डिलीवर करा था. इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, नोबडी एल्स हैज दैट. जब मैंने वो करा, देन आई रियलाइज्ड हाउ गुड आई एम. मेरे अंदर और कितनी क्षमता है. अगर मैं आप इस रो में आपके माना 12 लोग बैठे हैं, अगर आप इन्हीं 12 लोगों से कंपीट करोगे, आप कितने भी अच्छे कम्युनिकेटर क्यों ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Do you agree? So it is also very important that we get out of our comfort zone. We talk to more people. We understand what our strength is. ठीक है, कम्युनिकेशन तो ठीक था, ऑडियंस शायद वो नहीं था, शायद हमारा बिजनेस मॉडल थोड़ा खराब था, और एक्सपीरियंस नहीं था, और क्रिएटिविटी नहीं थी, हो सकता है. ओके, और मार्केटिंग स्किल्स. ओके, एंड टारगेटिंग द राइट ऑडियंस. ये बात भी सही है. हम लोग देहरादून में कोलैबोरेट करते थे, ऐसे दुकानदारों से भी करते थे जहाँ पे किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, लेकिन जहाँ पे कचौड़ी मिलती थी, तो कचौड़ी कॉर्नर में एक आंटी जी बैठी थी 72-73 साल की. तो हमारे स्टूडेंट्स को जाते थे डिस्काउंट कार्ड्स लेके, वो आंटी मना कर देती थी. फिर हमें आंटी जी को जाके दोबारा समझाना पड़ता था कि आंटी आपको ना फायदा हो रहा है, आपके पास लोग आ रहे हैं. और उनके हमने 2000 कूपन बांटे हुए थे मार्केट में. तो ये बात सही है, वी वर नॉट वर्किंग विद द करेक्ट पीपल इन द सेंस उनका भी विजन उतना बड़ा नहीं था. अगेन, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, it's my fault that I'm trying to generate business from those people. And सोशल मीडिया में भी हमारे को रीच ही नहीं था. सोशल मीडिया was there but my presence was not that prominent, यानी कि I was at fault, और स्केलेबल नहीं था बिल्कुल. गुड, ठीक है, बिजनेस मॉडल में थोड़ी सी कमी थी. अब आपकी जो एक एग्जिस्टिंग स्किल है, आप लोगों ने अपनी स्किल्स लिखी थी कुछ यहाँ पे, राइट? और मैंने आपको बोला था जो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल है उसको आपको क्या करना है, इट इज रिटन राइट ऑन द स्क्रीन. यू नीड टू अलाइन दैट विद अ हाई इनकम स्किल. नाउ हाउ डू वी डू दैट? दैट्स द क्वेश्चन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाउ डू वी डू दिस? कि हमारी जो एग्जिस्टिंग स्किल है, हम इसको एक हाई इनकम स्किल के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं. लाइक फॉर मी, ऑल दैट आई हैव डन इज, जो मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ था उसी को ही हमने हमारा हाई इनकम स्किल बनाया. हमने वेबिनार्स करने शुरू करे, जैसे अभी यहाँ पे अराउंड 900 लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं. हमने ऑनलाइन सेशंस करना शुरू करा, तो अराउंड 5000 लोग हमको सुनते थे, 10,000 लोग हमको सुनते थे. तो अगर उसमें एक्शन टेकर्स कुछ कम लोग भी थे, तो भी हमारा परसेंटेज बढ़ गया, हमारा नंबर बढ़ गया, जो लोग हमको सुनते थे, हमारी रीच बढ़ गई. तो बिजनेस आपको ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. मैंने लोगों को सेल्स करना सिखाया. व्हाट वाज माय फॉर्टे? सेलिंग. सो आई टॉट पीपल हाउ टू सेल. हमारी बुक लॉन्च हुई, हमने आप में से कुछ लोगों को दिया भी है. वो बुक लॉन्च होने के बाद हमने लोगों को एक चीज करना सिखाया कि आप अपनी बुक कैसे लॉन्च कर सकते हो. सो व्हाटएवर वी लर्न, वी अलाइन दैट विद अ हाई इनकम स्किल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Right? How many of you agree to this that internet today is a great leveler? Do you agree? आज के टाइम पे आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी जगह किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो, किसी भी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन आप कर सकते हो. Can we have the next slide please? People, I want you to take a सारे pointers आप दे दीजिए एक बार. These are all the benefits of an online business. I want you to take a screenshot for this. Everyone, please take a photograph. You can start your business at your house with a table, chair, whatever you have. You can start your work with that. You don't need any other exorbitant resources with you. Your business can reach anywhere. There's no boundary. आपका business 24/7 work करता है. Your sales increase, लेकिन proportionately आपका cost increase नहीं होता. It is fast and efficient for brand building. It saves upon your operational cost. You can retarget people who have come to your pages. You get quick and real-time results, and your money transactions also remain clean and money does not get stuck. How many of you agree that these are some amazing benefits when you take your work online? Yes? Come on. Yes. Yes? Yes. Good. Next slide please. So एक हमको ये समझ में आया कि हमारे काम को ऑनलाइन लेके जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. But then how do we do it? There are a few mentees of ours. You'll be very happy to know, एक हमारे मेंटी है, उनका लास्ट मंथ का जो रेवेन्यू जनरेटेड था that was more than rupees 1.5 crores. And there are a lot of people, around 50 के ऊपर लोग ऐसे हैं who generate more than 1 crore rupees every year. We have about 100 people who generate more than 50 lakhs every year. And then आपके जैसे और बहुत सारे students भी हैं who generate lakhs of rupees every month. Again, the different thing is that what they are doing is a specialized skill. I tell you about some of them. Next please. People, you can take a photograph for this also, for the next 4 slides. We'll go through very quickly every 4 slides, then I'll explain. So when we talk about freelancing, we need to understand, it is a, पिछला slide, last slide, let them take a photo please. This is $1 trillion industry right now. Sitting in your house, you develop a business, you do something, you work along with your college education. If you are a college student right now, it will not hamper your education at all. How many of you know what is freelancing? किसी को मतलब क्या idea क्या होता है freelancing? Anybody?
A lot of people are raising their hand. Yes, आपने सबसे पहले हाथ उठाया था. With the cap. हाँ जी. मतलब ठीक है, you are working alone. आप ये बोलना चाहते हैं, what is the meaning of freelancing? बोलो बोलो. सर मतलब अपने खुद के लीजिए पे अपने हिसाब से काम करना जो हम करना चाहते हैं. ओके, करना तो हम सोना भी चाहते हैं बहुत ज्यादा. हाँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है सोना. कौन कौन है आप इसको सोना बहुत ज्यादा पसंद है भाई? तो so for people like you, online business is amazing, right? You make a video और रात भर चल रहा है, आपकी वेबसाइट, आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, आप सोते सोते भी पैसा कमा रहे हो. इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता. यस, ओके. इसके लिए तो लाउडर यस होना चाहिए. यस, यस. आई गॉट अ पॉइंट. किसमें हमें सबसे बड़ा यस अभी तक मिला है? सोते सोते. तो आपने बोला फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. With freelancing, you live here in India, you work with a lot of clients, whether they are in India or outside India. ये चीज हमको क्लियर हो गया. And आप किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के संग काम नहीं करते हैं. You can work with multiple clients. Make sense? ये क्लियर हो गया? Okay. Next, ये चीज भी इसकी भी आप फोटो ले लीजिए. If you haven't, you can work with clients outside India as well, and you can contribute to India's economy. I'll also tell you how and why is this so important here in our country. So you work with clients outside India as well, and you contribute to the economy as well. Good. Next. Please take a photo for this. Our country has the largest talent pool of technically skilled professionals. All of you would feel so happy hearing this. And let me tell you one more thing. In our country, today there are so many people. अब एक चीज और है, आप लोगों ने देखा होगा मैंने शुरू में आपको थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत थोड़ा सा एम्फसाइज करा था. Why is it important? Why is it important that we become very good when it comes to speaking in English? क्या उसका मतलब ये है कि हम अपनी मातृभाषा का अपमान कर रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन आप अगर वो भाषा सीख जाते हो, which is a global language, then you can work with clients outside India, work with them, tell them how good our country is, tell them about the amazing things of our country, get the business from the outside countries to our country, contribute to India's economy, and actually that is how you would be making your country proud. Do you agree? Yes or no? Yes. Good. Next. Please take a photo for this, everyone. People will have to do some work. Come on. See this. इसमें एक सिंपल सी चीज आपको ये बताई गई है कि अगर आप इंडिया के बाहर से पैसा इंडिया में लेकर आते हैं, whether it is in US dollars or it is in euros or it is in pounds, everybody knows वो वाला करेंसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी करेंसी से. तो अगर आप इंडिया में रह के काम करते हैं, अगर आप मान के चलते हैं, if you work with a client based in UK to earn let's suppose just 1 lakh rupees a month, अगर आपको 1 lakh rupees, मेरे ना बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो मुझे ये चीज बोलते हैं honestly speaking, जो बोलते हैं सर आप ना ऐसे मत बोला करो if you want to just earn rupees 1 lakh a month, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम भी होता है. लेकिन मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, and I can say this putting my hand on my heart, जब एक बार आप एक हाई इनकम स्किल डेवलप करते हो, when you learn all these things, whether it is earning money sitting from anywhere, it is very easily possible. एक एग्जांपल देता हूँ. Supposedly you are working with a client based in UK, ठीक है? उनको आपको अगर 1 lakh rupees per month पे करना है, आपको पता है उनको कितने रुपए आपको देने हैं, क्या लगता है in their currency? How much money do they have to pay? 1 pound is equal to 100 INR. So they only need to pay you 1,000 pounds, and that is equivalent to 1 lakh rupees. India में is that decent amount? Yes, we can do it. अब for them, do you understand? उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा amount नहीं है. Yes. 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 Okay. Next. Please take a photograph of this also. And ये जो सारे numbers हैं, all the data and everything that we are sharing with you, this is real, authentic data. All of this. And people, I also want to share with you one more amazing news. This is something that I want to do in the future. We are already doing well, but I'm not happy, I'm not satisfied. ये तो नहीं बोलूँगा I'm not happy, I'm happy, but we want to do so much more. ये बहुत important है. अब इसमें हमने क्या सोचा है ना, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एक फ्रीलांसिंग मास्टरी भी लॉन्च करना चाहते हैं आगे चल के, सो दैट वी क्रिएट मोर फ्रीलांसर्स. एंड माय मिशन इज कि हम लोग 1 लाख फ्रीलांसर्स क्रिएट करेंगे इन इंडिया इन द कमिंग 2 to 3 years, सो दैट वी आर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन वर्क विद क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया. एक चीज मेरे को आपको और बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट. सपोजिटली एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर योर लर्निंग. यू वांट टू गेन लेट्स सपोज 8 kgs वेट, एक एग्जांपल ही हो गया. दूसरा एग्जांपल ये हो गया, यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, right? Millionaire in US currency, that is around 7.5 crore rupees. ये दोनों आपके टारगेट्स हैं. और अगर आज की डेट में आप 2 लाख रुपए महीने का कमाते हैं,
अगर आपको अगले महीने 2.5 लाख रुपीस आता है, आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? Should we feel good? Yes. Should we feel good? Yes. Okay, थोड़ा कम yes है. Should we feel good? Yes or no? Yes. Okay. How many of us genuinely feel good when we do something significant in our life? Do we feel good? Think, ask this question to yourself. It becomes a normal for us. It becomes a norm for us. हमें लगता है ये तो हो गया, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. But what we need to understand is, I will give you a very simple example. मान के चलते हैं, एक मेरे पास कप है यहाँ पे. Can I have a cup? Anybody? Very quickly. देते एक कप लाके या ग्लास लाके देते जल्दी से. मेरे हाथ में एक कप है. एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है? अभी वो पूरा का पूरा भरा हुआ है. Completely to the top, it is filled. Can I pour in more water if this cup is filled till the top? अगर ये बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, can I pour more water inside this? I can't. Water will spill. Everybody agrees to that. Now what happens is, जब आपके अंदर gratitude नहीं होता, मैंने आपको लिखवाया था ना 10 चीजें जिसके लिए आप थैंकफुल हो अपने लिए. जब आपके अंदर gratitude नहीं होता चीजों को लेके, believe me, ये मग इससे ज्यादा आपकी लाइफ में कभी भी नहीं भरेगा. Because आप एक यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो. And the signal that you are giving to the universe is, I am not happy with what I have been given. इसका मतलब ये है that you are not able to digest what you have been given, and what that also means is that the universe will not give you more in your life. आप खाना खा रहे हो, आपकी प्लेट पूरी भरी हुई है, आपकी मम्मी आपके लिए एक और रोटी नहीं रख सकती वहां पे, राइट? पॉसिबल नहीं है. By the time you are not thankful with what you have, please write this down. If you are not thankful and grateful for what you have, you will never ever get more in your life. It's as simple as that. How many of you agree to this? Yes? Yes. And how many of you ever thought about this earlier? Sadly, we don't. Many a time तो हम कहते हैं ठीक है यार, जो मेरे पास है और होना चाहिए. Because आपने सबने बोला था, we keep comparing. So by the time you're going to keep comparing, वो वाली खुशी तो हमारे पास कभी भी यहाँ पे नहीं आती है. तो ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर है. ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक और लाइन है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, वो ये, you need to let go of the good in your life so that you can allow greatness to come in your life. It's as simple as that. यार मेरे लिए बहुत मुश्किल था देहरादून छोड़ के जाना. My mom was all alone over here. मेरे पापा और छोटा भाई दिल्ली में ही थे and नहीं चाहते थे हम ऐसा करें. But we had to. We did not have a choice. And now our parents feel so proud that we did that. So many a times you need to let go of the good to allow greatness in your life. Okay? तो हमने अगली स्लाइड पे चलते हैं प्लीज. इसका फोटो ले लिया था आप लोगों ने? Yes? Yes. Loud है? Yes? Yes. Okay. एक चीज और है. In India, you can earn as much money as you want, whether you have done whether you have a highly qualified degree or not, whether you have 10 to 12 years of experience or not, that does not matter, believe me. Let me tell you how. Next, Ami. Right, next. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द वे. आपके कॉलेज अथॉरिटीज को भी हम दिखाना चाहेंगे. इट विल नॉट इंटरफियर विद योर फॉर्मल एजुकेशन. आप अपनी पढ़ाई करते करते करेंगे, आपके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए. इनफैक्ट मेरे को एक चीज और आप लोगों को बतानी है. डू यू अग्री, बिजी पीपल मेक टाइम. जो लोग बिजी होते हैं वो किसी और चीज के लिए अपने पास 100% समय बना सकते हैं. लेकिन एक इंसान जो खाली बैठा है ना भाई, वो पड़ा ही रहेगा. आप उसको कितना भी मोटिवेट करो, कुछ भी करो, बोले अरे नहीं यार नहीं करना यार, नींद बहुत प्यारी है, ऐसा ही होता है. But if you are occupied, you will find time to do more things in your life. Believe me, that is why it is very important. If you एक चीज और है, the way you do one thing in your life is how you are going to do most of the things in your life. आप अगर एक चीज बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ करते हो, आप बाकी चीजें भी वैसी करोगे. अगर मैं सेशन करता हूँ people, whether I do a session for 40 hours or 4 hours or 40 minutes or 4 minutes, the energy would always remain the same because that is how it should be all the time. Okay, next. अभी किसी से दिमाग में ये है कि सर आपने काफी ज्यादा भूमिका तो बांध दिया, आपने थोड़ा मोटिवेट भी कर दिया, आपने सेल्फ लव के बारे में भी बताया, आपने एनर्जी भी बताया, आपने ये भी बोला कि चीजें लानी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप? हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग ऑन दीस लाइंस कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी. ओके, नेक्स्ट. ओके, पीपल प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, देन आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस. डोंट वरी. सबसे पहला है आपका चूजिंग अ निश. सेकंड इज स्टार्ट क्रिएटिंग सोशल मीडिया कंटेंट अराउंड इट. Third is work on your skill sets. Fourth is you reach out to your clients. Fifth is establish the proof of concept. And the sixth is reach out to more clients and scale. Any idea what is a niche? Niche क्या होता है? कोई idea? The particular work. Area जिसमें आप काम करना चाहते हो, specific area. कुछ examples दीजिए niche के. For example, sales is a niche. हाँ जी. Video editing is a niche. Okay. And
ट्रैवलिंग इज अ निश, कितने टाइम में मोनेटाइज होता है मैडम ये देखना पड़ेगा, बट यस इट इज अ निश. ओके, एंड लूज वेट कराना, वेट करना, बढ़ाना, घटाना दोनों ही हो सकते हैं. और डिजिटल मार्केटिंग भी हम बोल सकते हैं, लेकिन एक वो बहुत बड़ा निश हो गया. इट्स अ वेरी ब्रॉड निश. फेसबुक एड्स इज अ स्पेशलाइज्ड निश. ओके, एंड यार देखो एक चीज है, ठीक है, ये जो आगे वाले जनता है ना, ये मेरे से पहले से सीखती है. मेरे को यहाँ से ज्यादा आंसर्स मिल रहे हैं. आप यूनिवर्सिटी वाले इनसे कम तो नहीं हो ना, नंबर में भी नहीं हो, टैलेंट में भी नहीं हो. डू यू एग्री विद दैट? इसमें तो आप लोगों का बहुत लाउड है आना चाहिए. यस यस. तो आपके आंसर्स भी आने चाहिए इतने ज्यादा. ठीक है, क्या होता है निश, आप बताइए. एक एरिया जिसमें आप काम करते हो. जैसे मैंने मेरा निश चूज करा, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, लेट्स से पब्लिक स्पीकर, वो एक निश हो सकता है आपका. ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो हो गया आपका. तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि मैंने एक निश चूज करा. अब सेकंड जो हमने पॉइंट यहाँ पे दिया है, दैट आफ्टर चूजिंग अ निश यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग सोशल मीडिया कंटेंट. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? आपने निश सेलेक्ट कर लिया, एक एरिया सेलेक्ट करा, उसके बाद आपको एक सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना है. वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों लगता है आपको? To reach out to more people, okay, and to build your audience. सबसे पहले कम से कम लोगों को ये पता तो होना चाहिए ना आप किस चीज में सक्षम हो. What is it that you are capable of saying, delivering, providing value with, providing information, whatever it is. So ये बहुत important है that you start creating content on social media, and believe me, irrespective of how many views you are getting, you should always and regularly produce content because that is how you are going to build your audience. आपको लोग जानना शुरू वहां से करेंगे. Thank you भाई, thank you so much. सो हमने बोला कि आपने कंटेंट डालना शुरू करा. इसका फोटो ले लिया आपने, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नो नेक्स्ट. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड. ओके, पीपल प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेक अ फोटोग्राफ. आई डू सो मेनी वेबिनार्स, मतलब मैं हर हफ्ते वेबिनार करता हूँ, लाइव ऑडियंस नहीं होता, तो मेरे को इतनी आदत हो गई ना, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. पीपल अटेंड देम लाइव ओनली देयर ऑन देयर डिवाइसेस, बट दिस टाइम वी हैव अ फिजिकल ऑडियंस. प्लीज टेक अ फोटोग्राफ, नॉट अ स्क्रीनशॉट. ओके, आप इसमें से कितने पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं? अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अराउंड 14 15 पॉइंट्स हैं. इसमें से कितने आपको पता है? इसमें से कितने आप जानना चाहते हैं? यू वांट टू लर्न? यस. ओके, आपने इसका फोटो ले लिया. ओके, एक बार पिछली स्लाइड करना प्लीज. व्हाट आई वांट यू टू डू इज, ये हमारा ईमेल आईडी है. आपको जो भी स्किल सेट के बारे में नॉलेज चाहिए आप हमको एक मेल करिएगा. दिस इज माय ऑफिशियल आईडी. आप सिर्फ इसमें ये बोलना दिस इज द स्किल दैट आई वांट एंड वी विल सेंड यू अ डाउनलोडेबल पीडीएफ. इसमें ये पूरा नो वी विल सेंड यू अ ट्रेनिंग नाउ, जो कि आप देख सकते हो पूरा 2 2.5 3 घंटे का ट्रेनिंग होगा, बिकॉज वो सारे पॉइंटर्स में एक सेशन में तो नहीं कवर कर सकता. हैप्पी? डू वी डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट? इसके लिए एक बार तालियां बजाइए. People, we don't need your phone numbers. I'm not here to sell anything to you. You just send us an email. We will send you the trainings. We have already done that. Implement that for yourself. Okay? अब ये अगले स्लाइड में जा सकते हैं हम लोग प्लीज. So these no जहाँ पे हमने सारा इंडस्ट्रीज बताई थी. हाँ, ये वाला कॉपी राइटिंग क्या होता है मैं आपको एक जल्दी इसके बारे में बताता हूँ. Then I'll go deep. What is copy writing? Any idea? What is copy writing? Okay, selling through words. That is copy writing. And डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स. ओके, एक बहुत सिंपलिस्टिक सा अगर मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन दूं ना, एक मैंगो शेक एंड 1 फ्रेशली कट मैंगो स्मूदी सर्व्ड विद आइस क्यूब्स blended with A2 milk given to you at an optimum temperature that you get maybe inside a Starbucks is what is the actual difference between एक मैंगो शेक जो 20 रुपए का होता है और एक जो अच्छी कॉपी राइटिंग करा हुआ आपको मैंगो शेक दिया जाता है. ये इतने सारे इसमें चीजें बताई जाती हैं. किसने वो ऐड देखा था? एक 5 स्टार होटल में एक बंदा जाता है, बोलता है वांट दिस समोसे का जो ऐड होता है सेवरी है, और वो बाहर से जाके समोसा लाके पकड़ा देता है उसको 7 रुपए वाला. ऐसा नहीं करना है हमें यहाँ पे बाय द वे. लेकिन कॉपी राइटिंग का मतलब होता है सेलिंग थ्रू वर्ड्स. नाउ सी, अगर आपकी वेबसाइट बना रहे हो तो आपकी वेबसाइट पे आप तो नहीं खड़े होगे रोज प्रेजेंटेशन देने के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता. देन आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट बहुत अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. डू यू अग्री?
जितना अच्छा कंटेंट होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर उतना ही ज्यादा लोग उससे रिलेट कर पाएंगे. People will be able to understand, people will be able to make a purchase. Yes or no? So what is very important is that the content that is written, it should be good. जैसे कि स्टेज पे आए थे उन्होंने करनाल से, उन्होंने यही चीज आपको बोली थी, we need good content writers. अब आपको क्या लगता है एक पूरा वेबसाइट जिसमें 4-5 पेजेस हैं, 8 पेजेस हैं, वो बनाने के लिए what do you think? If you know good copywriting, how much money can you charge? You can very easily charge in 6 figures, believe me. If you can make a good converting website by your content. Now, what is the meaning of a good converting website? क्या होता है converting website? अगर एक रियल एस्टेट ब्रांड है, रियल एस्टेट ब्रांड का converting website कौन सा होगा? क्या लगता है आपको? रियल एस्टेट का मोटिव क्या होता है? आप क्या रियल एस्टेट फोटो देके खरीद लोगे? घर फोटो देके खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे, राइट? तो आप क्या चाहोगे आपकी वेबसाइट से हो? आप ये चाहोगे कि कोई मेरी प्रॉपर्टी को देखने आएगा वहां पे. यस, तो आप क्या चाहोगे? गुड कन्वर्टिंग वेबसाइट एक इस इंडस्ट्री में होगा जो कि मेरे पास आए और मेरी जगह को विजिट करे. आप KFC से चिकन तो ऑर्डर कर सकते हो ना फोटो देख के. यस, दैट कैन बी डन. तो KFC के लिए गुड कन्वर्टिंग वेबसाइट कौन सी होगी जिसमें ऑनलाइन ऑर्डर हो सके और प्रोडक्ट आ सके. सो इफ यू मेक अ गुड कन्वर्टिंग वेबसाइट वी कैन मेक मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. ये हो गया कॉपीराइटिंग. नाउ व्हाट डू यू थिंक इज ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक? Okay, awareness through emails. इधर से answer. What do you think? सर जो मतलब हम अपने किसी प्रोडक्ट को, हाँ जी, okay, हाँ जी. सर जब हमने मतलब जब हमारे पास लीड्स आ जाती है तो उनका जब हम ईमेल कलेक्ट करते हैं, अभी हमको स्टूडेंट्स को भी बताना पड़ेगा कि लीड्स क्या होती है. सर एक्चुअली मेरी आपका नाम मोहित रावत. एग्जैक्टली. So अगर आप अपने काम में इतना प्यार करते हो ना तभी आपको अपने सारे मेंटीज के भी नाम याद रहेंगे out of so many people. Yes. सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर आप बता पाओ और ज्यादा. सर अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो हमारे लैंडिंग पेज से मतलब जैसा लैंडिंग पेज भी बताना पड़ेगा. रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया तो हमें Okay. मतलब वेबसाइट बनाएंगे Okay. तो वहां पे जब कस्टमर आएगा हाँ. तो अगर वो अपनी डिटेल्स फिल करता है तो वो एक कन्वर्टिंग वेबसाइट है, बिकॉज हम वहां पे उसको रियल एस्टेट सेल नहीं कर सकते. फिर जब वो अपनी डिटेल्स वहां पे फिल करेगा तो हमारे पास उसका ईमेल आ जाएगा. सो उसको हमें मतलब ईमेल्स के थ्रू उसे नर्चर करना पड़ेगा. Okay, good. Sit down. Let's have a big round of applause for Mohit. मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके बता देता हूँ. आपने देखा आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप वहां पे अपना नाम और ईमेल आईडी डालते हो और आपके पास इमीडिएटली मेल आ जाता है. सो बेसिकली दैट इज व्हाट इज नोन एज ईमेल मार्केटिंग, वेयरइन आप अपना डेटाबेस दे रहे हो और आपके पास इमीडिएटली इंफॉर्मेशन आ जाती है. हैवंट यू एवर नोटिस कि ऐसा कैसे होता है कि मेरे पास इमीडिएटली ईमेल आ गया? कभी सोचा या कभी सोचा ही नहीं किया रे इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया कभी. बट पीपल हु डू दैट, पीपल लाइक अस who are generating leads. Now this is a lead. आपको मैंने क्या बोला, मैं आपको एक ई-बुक देता हूँ, मेरे थ्रू आप सीख सकते हो एक ई-बुक से, और उसके बदले में हम आपका डेटाबेस कलेक्ट करते हैं. तो वो डेटाबेस हो जाता है लीड. तो आप लीड जनरेशन के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो. आपको ये चीज समझ में आती है ना? बिजनेस के लिए, ऑनलाइन बिजनेस हो या फिजिकल बिजनेस हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है लोग. आई नीड पीपल. एंड इन द ऑनलाइन वर्ल्ड वो लोग हो जाते हैं हमारी लीड्स. प्लीज राइट दैट डाउन. आपका लीड्स हो गया, आपका लैंडिंग पेज इज योर वेबसाइट एंड योर कन्वर्टिंग वेबसाइट जो कि वो पर्पस सॉल्व कर रहा है हमारे लिए. ठीक है, ये 3 चीजें हमारी क्लियर हो गई. फेसबुक एड्स, एनी आइडिया? आप कभी भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कंटेंट देखते हो, आपको वहां पे स्पॉन्सर्ड वर्ड लिखा हुआ दिखता है. हैव यू नोटिस्ड? Anybody over here who has run Facebook ads? 1, 2, wow. सोचो पूरी ऑडियंस में कितने हाथ दिखे आपको? 10. वो लोग जो एक्शन टेकर्स हैं उसमें भी सिर्फ 10 लोग, 0.1% of the total people sitting over here. People, do you realize why is this a high income skill? Because most people don't do that. जो काम बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं उसी में ही तो मेरे पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इनकम कमाने की. How many of you agree to this? Yes. Okay, people, I want more energy. Everyone, please stand up. One more time, quickly, jaldi se. I know I'm making you do a lot of work, but that is important. We need more energy. Okay. All right. आप लोगों के हमने ड्रीम्स पूछे थे कुछ देर पहले. Now what is going to happen is the person who shouts with the topmost intensity is the one whose dream is going to come true. The most fastest lane सबसे जल्दी उसका होने वाला है. So on the count of 3, we're going to shout at the top of our energy and we're going to say yes. Okay? Okay? Okay. So 1, 2, 3. Yes! Yes! So it's good. One more time. 1, 2, 2.5. Yes! 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 One more time, people. This is for all the people who are
are standing over here, they deserve abundance in their life and they deserve to make it big in their life. If you affirm to that, say yes. Awesome. Please sit down. Thank you. Now I want the same energy, right? जितनी energy अभी मेरी, I want you to have the same energy and exhibit the same energy for yourself, right? तो हमको email marketing के बारे में idea लग गया, Facebook ads. Do you have now a little bit of idea about lead generation as well? What is lead generation? हमको ये idea लगा. जब आप किसी का भी database acquire कर रहे हैं and if you are generating leads, that is the concept of lead generation. वो चीज़ हम वहाँ पे करते हैं. ये lead generation हो गया. और इसके अलावा अभी क्या इसका आपने फोटो लिया, एवरीबॉडी हैज टेकन अ फोटो फॉर दिस. तो Yes. एक चीज जो हमको क्लियर हो गया वो ये दैट वी जनरेट अ हाई इनकम स्किल फॉर आवरसेल्व्स, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट. ये चीज हमारे लिए क्लियर हो गया. आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? व्हाट डू यू थिंक? एक आपने हाई इनकम स्किल सीखना शुरू करा, आपने वो हाई इनकम स्किल सीखना शुरू करा और उसके बाद आपने उसको इंप्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया. व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? पीपल, आई आल्सो वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू हियर जिनका कॉलेज अराउंड 2025 में कंप्लीट होने वाला है? 2025. So many of you. Okay, good. How many of you want a clear-cut framework कि 2025 जो year है, I will give you the complete roadmap how you would be able to hit an income of 8 figures in 2025. How many of you are interested in that? Say yes. Yes. यार इस एनर्जी से कुछ भी नहीं होने वाला, 5 फिगर भी नहीं आने वाले. Give me a yes. Awesome. Good. Okay, next slide please. Next. एक बार आप लोग इसकी फोटो ले लीजिए जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री. प्लीज टेक अ फोटो फॉर दिस. नाउ पीपल, फॉर मी द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज कि आपको इतनी सारी नॉलेज आपको एंटरटेन करने के साथ 2 घंटे के अंदर देना. करेंगे? ओके पीपल, आई वांट वन मोर कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड. ओके, वेरी क्लियर कमिटमेंट. ओके, वो ये है दैट आई विल बी नीडिंग एग्जैक्टली 35 more minutes, but I want 35 minutes of complete energy. And if there is anybody, okay, I am being very honest over here, right? I know that हर एक इंसान सारी चीजें अचीव नहीं करेगा जब तक वो एबिलिटी वो डेवलप नहीं करते, whether it is patience, whether it is putting in efforts. So मेरे को दिख रहा था कुछ वॉलंटियर्स ऐसे थे जो लोगों को जाने नहीं दे रहे थे. If anybody wants to go, you can please allow them. I don't have a problem with that because people, we are looking to get it to the 0.001%. That's not easy, let me tell you. But it is totally worth it. Do you agree? Yes? Okay. So do I have your permission that in the next 35 minutes you will give me the same energy that you have given till now so that we can actually give you the real numbers also? Give me a yes. Yes. Louder people. Give me a yes. Yes. Good. ये लास्ट वाला भाई मुझे बहुत फाड़ लगा भाई. एक किताब इसके लिए होनी चाहिए. मुझे पता है कोई ऐसी मोहतरमा नहीं होगी जिसकी ऐसी आवाज होगी, तो मैं गारंटी कैसे बोल सकता हूँ जो भी ये लास्ट वाला भाई होगा हमारा. ओके, हैव यू टेकन अ फोटोग्राफ फॉर दिस? एक इसकी फोटो ले लीजिए प्लीज, ऑल ऑफ यू. अब एक चीज और है, अमी कैन बी गो टू द प्रीवियस स्लाइड जहां पे कि हमने वो लिखा था हमारी इंडस्ट्रीज. कैन बी गो टू दैट स्लाइड? दिस इंडस्ट्री लास्ट मंथ लिस्ट. ओके, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एक 20 सेकेंड्स इंट्रोस्पेक्ट करो. आपके पास ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, आपके पास ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो इनमें से किसी भी एक के साथ अलाइन हो सकती है? सोचो, आपके पास अभी ऐसी कौन सी एक स्ट्रेंथ है जो इनमें से जितनी भी स्ट्रेंथ लिखी हुई है, जितनी भी क्वालिटीज है इंडस्ट्रीज लिखी हुई है, इसमें से किसी एक इंडस्ट्री के साथ अलाइन हो सकती है. लाइक आई गिव यू माय एग्जांपल. मैंने कम्युनिकेशन करा, ऑडियंस को बढ़ाते चले गए, 10 लोगों की जगह 5000 लोगों तक गए, सेल सीखा, बुक सिखानी शुरू करी, कैसे बुक सेलिंग होती है, सेलिंग करना, बिजनेस स्केलिंग करना. सो आई न्यू कम्युनिकेशन इज माय फॉर्टे. हम साथ साथ सेलिंग भी सीखते गए. अगर आप देखोगे ना, आई डू कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, लीड जनरेशन, कोचिंग. These are the things that I do, and thank you. And more importantly, our company does all of this. So जो बाकी की चीजें वो मेरी टीम के लोग करते हैं. जैसे आपको वीडियो वाले लोग दिख रहे होंगे, आपको पीपीटी वाले लोग दिख रहे होंगे, आपको मेल्स अगर आएंगे वो मेरी टीम भेजती है. सो एवरीबॉडी हैज अ डेडिकेटेड टास्क. बट ये सब चीजें हमने खुद से डेवलप करा, ये हमने करा. इसमें से अगर आप एक स्किल भी डेवलप करते हो, यू कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग वेल फॉर योरसेल्फ. कौन सी इसमें से एक स्किल है जो आपको लगता है आप अपने लिए अलाइन कर सकते हो? व्हाट डू यू थिंक? Programming, okay. Anybody else? Coaching, okay. And ईमेल हैंडलिंग कर सकते हो. ईमेल हैंडलिंग तो मुश्किल भी नहीं है,
It's very easy actually. Okay, आपको क्या लगता है? Ami, now I want you to go to the slide wherein we are giving them the plan 6 months 8 months वाला. Good. People, एक इसकी फोटो लो, then I'll explain to you. Please do this. Now, what is the date today? आपको डेट दिख रही है? हमने 20 सितंबर की डेट डाली है. हमने ये बोला अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर, if you are a complete beginner, you say राहुल मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. आप क्या बोल रहे थे? I don't have technical skills. I am very very bad when it comes to written communication. मेरे को टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है. मेरे को कुछ भी नहीं पता. अगर आप एक complete beginner हो, हमने तभी भी आपको एक blueprint बना के दिया है कि आप कैसे करोगे. जिसमें पहली लाइन ये है that if you start from the 20th of September, you start your journey on this particular day. और हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे. आपको हमने पिछली जो भी स्लाइड्स में पॉइंटर्स दिए थे, आप उसमें से कोई भी एक ले सकते हो. यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि आपके सामने, that is, can you see that? Copywriting. So what we say is that you start learning copywriting from today. Is that possible? हम लोग आज से सीखना शुरू कर सकते हैं? Good. हमने कितना टाइम आप लोगों को दिया है सीखने के लिए वो मैं बताऊंगा. On the daily basis, what you need to do is, कहाँ से no content मिलेगा? We'll give you the content also. Don't worry about that. Whatever you learn on a daily basis, आप जो भी चीज रोजाना सीखोगे वो चीज आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी. कैसे? रोजाना वीडियोस बनाओ, कंटेंट डालो, रिटन फॉर्म में डालो, जिस भी फॉर्म में डालना चाहते हो डालो, पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया. बिफोर आई टेल यू टू डू दिस, आई वांट यू टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी. बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी है. आपके डायरी में एक बार प्लीज मुझे लिख के बताओ. आई गिव यू 30 सेकेंड्स. लास्ट 3 इयर्स में आपने या आपके फैमिली वालों ने, किसी ने भी ऐसा कौन सा कंसिडरेबल प्रोग्रेस करा है फाइनेंशियली इन द लास्ट 3 इयर्स? ओके, प्लीज राइट इट डाउन. This is very important thing. अगर हमें डायरी पेन खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है तो उसका मतलब ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं है 3 सालों में. ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, अमूमन सबके संग ऐसे ही रहता है. लेकिन ये क्यों जरूरी है ये मेरे को आपको बताना है. In the last 3 years, how many of us, or our family members, have done any considerable progress, or whatever considerable progress you have made in terms of your income? Please make a note of that. Please write it down. Okay. How many of you feel कि honestly कि राहुल ऐसा ज्यादा हुआ नहीं है? Yes. ऐसा है क्या? Yes. Okay. So what this means is, अगर अगले 6 महीनों तक जब आप अपनी लर्निंग पे फोकस कर रहे होंगे ना, आपको यही चीज अपने दिमाग में डालनी है कि राहुल पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है. And I tell you why this is important. क्योंकि 1 महीना आप मेहनत करोगे, आप बोलोगे यार कुछ हो नहीं रहा, और आप छोड़ दोगे और आप कुछ और करना शुरू कर दोगे. ये रियलिटी है. 3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद आप बोलोगे अब यार सर बेकार है, नहीं होता, आपने बेकार हमारा टाइम खराब करा हुआ है. सो जब भी आप ये बोलोगे ना, आई वांट यू टू लुक एट दिस पेपर एंड टेल योरसेल्फ कि यार ज्यादा कुछ हुआ नहीं है 3 सालों में, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये बात सच है कि कुछ समय के अंदर हमारा पेशेंस जवाब दे देता है. क्यों नहीं देगा? नाउ व्हाटएवर you want happiness, you post a photo, you get Instagram likes, you get instant satisfaction and gratification. You want food, you order it, you get it instantly. But success does not come like that. And एक और चीज है, if success would come so easily, success wouldn't have that charm. Do you agree? If you would get success so very easily, उसका कोई वैल्यू नहीं करेगा ना. अगर आज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ यार हमने इतने महीने काम कर रहा था जब हम बस 500 रुपए पे गुजारा करते थे, then that's a story to tell. People get inspired by that. मैं आपको बोलूँ यार मैंने पहले क्लाइंट को रीच आउट करा, उसने हाँ बोल दिया, मेरे को उसने 40,000 रुपए दिए, छठे क्लाइंट तक हम 2.5 लाख रुपए पे पहुंच गए थे, फिर ऐसा हो गया, फिर वो. Will that story inspire anybody? It won't, right? No, I don't think anybody would have been sitting over here अगर ऐसा होता. So it is important that you go through the toil and you go through the hard times, because believe me, that is what shapes you to become whatever you want to become in your life. It's mighty important. Okay? Good. 20 तारीख से आपने अपनी लर्निंग की शुरुआत करी. आपने बोला हमने कॉपी राइटिंग से शुरुआत करना शुरू करा. जो भी कंटेंट आप रोजाना सीखते हो, आपको वो कंटेंट सोशल मीडिया पे डालना है रोज. आप रिटन फॉर्म में डालो, आप वीडियो फॉर्म में डालो, आप ऑडियो फॉर्म में डालो, आप आर्टिकल्स के तौर पे डालो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा डालो. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज आप बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स और कम्युनिटीज का पार्ट बनो जहां पे कि आपको लगता है आपको आपके क्लाइंट्स मिल सकते हैं. एक एग्जांपल लेके पूछता हूं, कॉपीराइटिंग के क्लाइंट्स कौन-कौन हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? Who all can be the clients for copywriting? What do you think? Startups हो सकते हैं, और coaches को चाहिए होता है कि हमारे लिए कोई अच्छा कंटेंट लिख दे. Universities, they also want somebody to write content for them, right? आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी अच्छा कंटेंट लिखा होगा, राइट? हमारे बारे में कौन-कौन से फेसबुक ग्रुप्स और कम्युनिटीज हैं जहां का कि हम पार्ट बन सकते हैं?
बिकॉज व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ दोस कम्युनिटीज, आपको क्या करना है जब आप इन कम्युनिटीज का पार्ट बनोगे? तो व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ सच कम्युनिटीज, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? व्हाट डू यू थिंक? जो भी आप रोजाना सीखोगे वो कंटेंट आपको वहां पे पोस्ट करना है, ठीक है? पीपल, आई वांट मोर एनर्जी, ओके? जैसा मेरा एनर्जी है ना, मेरे को ऐसी एनर्जी आप लोग का भी चाहिए. दिस इज फॉर यू, okay? On the count of 1, 2, 3, we say yes, and we say the loudest yes till now, okay? Ready for that? Yes. 1, 2, 3, yeah! Yes. Good. Let this energy be, okay? कौन लोग हैं यहाँ पे जिनके दिमाग में ऐसा रहता है, अबे यार मेरे को बहुत कुछ आता है, मेरे को बहुत कुछ करना है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है. आई लाइक सच पीपल, बिलीव. जो मुझे ऐसे लोग मिलते हैं ना, अबे तू क्या सिखाएगा? आई वांट सच पीपल बिकॉज एटलीस्ट दे हैव दैट फायर, राइट? और मैं चाहता हूँ कि आप इतना सक्सेसफुल बनो कि आप मुझे बोलो मेरे इंस्टाग्राम डीएम पे, अबे